In the insurance, we had already studied what is life insurance and the types of life insurance policies that are there. That is whole life, endowment, joint life, annuity, children endowment. इनके अंदर ही when you enter into the insurance sector, you will find a number of policies. इसी के अंदर according to the age, according to it caters to the आजकल क्या है, there is a tailor made insurance policies that can just cater to your need. आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए. You have to be bit careful. That is the only one thing. Next, in the insurance sector, we have the fire and marine insurance. Remember, life insurance हमारा जो है, that is, it's not an insurance of indemnity. On the other hand, जो life insurance होता है वो हम कभी भी ले सकते हैं. Once a child is born, their parents can take the insurance right from there. When a person starts earning, the person takes the insurance for himself or to his for his nears and dear one. लेकिन जो फायर है या फिर मरीन है, ये तभी है when you have certain insurable interest. अगर आपका है, means if you are having the property, अगर आपकी जो है property relating to your what you call as आपकी जो business है उससे related, if you are having some property, then only you will take. और आपको लगता है कि there is some need of insurance, only then you take up those policies. Life insurance is your own क्योंकि that will be giving you the benefit in different ways. जैसे कि employees होते हैं उनके लिए लिया जाता है, that is beneficial for them. On the other hand, when we talk about the fire and marine, it is only confined to the area when you require it, and it is renewable also. इट्स नॉट वन टाइम, मतलब आपने कर दिया, आपने प्रीमियम 10 years कर दिया, फिर आपको एक बार में मिलेगा, ऐसा नहीं होता है. एंड सर्टेन प्रिंसिपल्स आर ओनली एप्लीकेबल टू फायर एंड मैरीन. Fire insurance is a contract whereby the insurer, in consideration of the premium paid, undertakes to make good any loss or damage caused by fire during a specified period. This is what I said. This is for a specified period. जैसे कि आपका life insurance होता है वैसा नहीं होता. It is not for the entire life. It is for the specified period which is already specified in the policy. Normally, it is for a period of 1 year, after which it has to be renewed from time to time. The premium एक साल के लिए आप पूरा दे दो या फिर you can also give it in installments. Up, what are the two conditions? There must be some actual loss. It should be accidental and non-intentional. Now this is bit tricky. भाई कोई भी अपने जो प्रॉपर्टी है उसको आग तो लगाएगा नहीं, बट एट द सेम टाइम देयर आर पीपल दोज हु कैन टेक एडवांटेज ऑफ सच पॉलिसीज. They can take. So the companies, what they do is, that is the insurance companies, they have set up certain norms. They would be, inspecting the areas. They try to find out the exact cause. That is what हम लोगों ने पढ़ा था ना, proximate cause, causa proxima. The principle of causa proxima यहाँ पर आता है. The risk covered by आपका causa proxima, then contribution, mitigation, subrogation, all those principles are with fire insurance. The risk covered by a fire insurance contract is the loss resulting from the fire or some other cause which is the proximate cause of the loss. For example, if overheating without ignition causes damage, उसको हम fire loss नहीं कहते हैं. So the loss will not be recovered. Proximate का मतलब होता है the immediate cause that is mentioned in the policy.
A fire insurance contract is based on certain fundamental principles we have already discussed. First, in fire insurance, the insured must have the insurable interest in the subject matter of the insurance. Without insurable interest, the contract of insurance is void. मतलब insurable interest का मतलब होता है that person should have some pecuniary loss. उसका कोई financial loss होना मतलब कि हो सकता है, ऐसी संभावना है. In case of fire insurance, unlike life insurance, insurable must be present both at the time जब आप ले रहे हो तब भी और जब लॉस हो रहा तब. For example, a person has insurable interest in the property he owns, a businessman in his stock, plant, machinery, building, an agent in the property of his principal, a partner in the property of a partnership, a mortgage has insurable. ये पेपर में आपका आया था, which I had also told you. कि एक इंसान ने अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर रखी दूसरे मतलब किसको. So now that person जिसने मतलब कि पैसा दिया था, he had insured the property. Why? क्योंकि अगर उस प्रॉपर्टी को कुछ लॉस होगा तो उसका ही तो लॉस हुआ. That is called as insurable interest. Similar to life insurance, the contract of fire insurance is abirmi fide, यानी कि at most good faith. दोनों को, कंपनी को भी एंड द पर्सन हु इज गेटिंग द प्रॉपर्टी और द थिंग्स इंश्योर्ड, दोनों को फेथफुली, प्रॉपरली, सिंसियरली, ड्यूटी बाउंड, they should disclose all the facts. That is because sometimes there might be something which is, जैसे कि आपको मतलब आपके जो सामान है उसके साथ कुछ फायर क्रैकर्स रखे हुए थे, आपने बताया नहीं, नाउ आग लग गई. So you have to disclose. Similarly, the company also needs to disclose at what condition, what are the clauses, and under which the policy holder is going to get the compensation. The contract of fire insurance is a contract of strict indemnity. मतलब वही जो मैंने पिछली बार बताया था, लॉस जितना होगा उतना मिलेगा, जितने का आपने इंश्योरेंस किया उससे ज्यादा का हुआ, ज्यादा का लॉस हुआ तो भी आपको उतना ही मिलेगा जितना कि आपने इंश्योरेंस करवाया है. एंड अगर आपका कम लॉस हुआ है तो आपको उतना ही पैसा मिलेगा जितना कि आपको लॉस हुआ है. The insured in the event of loss recover the actual amount of loss from the insurer. This is subject to the maximum amount for which the subject matter is insured. This is the same thing. मतलब अगर आपका जितना भी एक्चुअल लॉस हुआ होगा उतना ही वो करेंगे, एंड दैट दे कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू देयर ओन पॉलिसीज. आपने उनको दिया है दैट मेरा इतना लॉस हुआ है, वो उसका मार्केट रेट लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ मतलब कि एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है कि एक कार जो है इट वॉज डिस्ट्रॉयड इन अ फायर. नाउ आपने कार की वैल्यू लगाई है 3 लाख रुपए, लेकिन कंपनी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो उसका डेप्रिसिएशन लगाएगा. द डेप्रिसिएशन दैट यू आर लर्निंग इन अकाउंट्स, उस डेप्रिसिएशन को वो वहां पर लगाएगा, उसके करंट वैल्यू को देखेगा. नॉर्मली वी टेक द डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% to 15% डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ प्रॉपर्टी. मतलब कुछ पे हम 10 लगाते हैं, फर्नीचर वगैरह पे हम हर साल का 10% लगाते हैं. यानी कि ओवर द पीरियड आपकी जो मतलब की वैल्यू है वो उस वैल्यू पे, जैसे कि इस साल 1 लाख रुपए की उसकी वैल्यू थी तो अगले साल उसकी वैल्यू 90,000 हो जाएगी, उसके अगले साल उसमें 9,000 हट जाएंगे तो 81,000 हो जाएगी. तो दैट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वो अपनी वैल्यू लगाएंगे कि उसकी उस कार की क्या वैल्यू है, एंड देन व्हाट इज द liable cost, and they would be giving. The purpose of this is that a person should not be allowed to gain by insurance. And it is also when the fire is in the proximate cause, यानी कि causa proxima. इस
वाले में से आपके बच्चे बेसिकली डिफरेंस बिटवीन फायर एंड मरीन आता है, मोस्ट ऑफ द टाइम इन द स्कूल्स द डिफरेंस बिटवीन फायर एंड मरीन आता है, एंड इन बोथ ऑफ द वन द मेन सारी चीजें एलिमेंट सेम रहती हैं. मरीन अगेन, हर एक इंसान खाली पली मरीन इंश्योरेंस तो लेगा नहीं. इट इज ओनली व्हेन द बिजनेसमैन इज सेंडिंग हिज कंसाइनमेंट्स, दैट इज मतलब कि थ्रू द रिवर और थ्रू द शिप. एंड मोस्ट हमारे जितने भी आपके बिजनेस डील्स होते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर मतलब कि कंसाइंड ओनली थ्रू द शिप बिकॉज इट्स चीपर. तो वी नीड टू गेट द मेरीन इंश्योरेंस. तो इट मे बी कि अगर आपकी कंपनी का रेगुलर है तो हो सकता है कि आप रेगुलर ले रहे हो, लेकिन आप एक ही बार भेज रहे हो, तो देन मे बी फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड, फॉर दैट पर्टिकुलर कंसाइनमेंट यू आर टेकिंग द मेरीन इंश्योरेंस. A marine insurance contract is an agreement whereby the insurer undertakes to indemnify the insured in the manner and to the extent thereby agreed against marine losses. अब marine में तो कई लॉस हो सकते हैं. Now it depends on what kind of insurance you have taken. आपने कौन सा लिया है. Marine insurance provides protection against loss by marine perils, perils मतलब harm, and perils of the sea. अब it can be collision of the ship with the rock. कौन कौन से हो सकते हैं? They are the collision of the ship with the rock, ship attacked by the enemies, fire captured by the pirates, actions of captains and crew of the ship. This is important. इसकी वजह से शिप डिसअपियर हो सकता है, डैमेज हो सकता है. अभी आपको पता है रिसेंटली देयर वाज वन वेरी बिग न्यूज अबाउट अ शिप, दैट इज अबाउट अ सबमरीन जो कि डिसअपियर हो गया. नाउ जो उसका ओनर था, दैट पर्सन हैड गॉट द कॉम्पनसेशन फ्रॉम द कंपनी. These perils cause damage, destruction, or disappearance of the ship and cargo and non-payment of freight. मतलब जो आपका पैसा होता है. So, marine insurance insures ship hull, cargo, and freight. अभी आप मतलब पढ़ोगे. It is a device where the insurer undertakes to compensate the owner or cargo for complete or partial loss at sea. He guarantees to make good the losses due to the damage to the ship or cargo out of the risk incidental to sea voyages. वो सी में जब वॉयेज है तभी होगा. द इंश्योरर इन दिस केस इज नोन एज अंडर राइटर. पेपर में आता बच्चा. द इंश्योरर को हम क्या बोलते हैं? अंडर राइटर, बिकॉज ही इज टेकिंग द डैमेज and a certain amount is paid by the insured, जिसके लिए उसे प्रोटेक्शन मिलता है. इट इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम अदर टाइप्स. हाँ, एलिमेंट्स आपके बेसिक वही जाते हैं. इसमें भी अबर में फिदे जाता है आपका, इसमें भी अटमोस्ट गुड फेथ आपका जो है वो, देन इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी जाता है. बट इसमें हम मिटिगेशन नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम तो वहां प्रेजेंट ही नहीं है ना, तो हम उसको कैसे बचाएंगे? पायरेट को कैसे धक्का दे देंगे? There are three things involved in a ship insurance, in a marine insurance. या तो आप पूरे शिप का करवाते हो. Since the ship is exposed to many dangers, the insurance policy is for indemnifying the insured for losses caused to the entire ship. जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अभी जो एक मतलब कि गायब हो गया था, तो उस शिप का, उस जो सबमरीन का जो आपका वो था, वो पूरा उन कंपनी को मिल गया. कार्गो का मतलब है वो पर्टिकुलर गुड्स.
हम करवाते हैं, मतलब द बिजनेसमैन। द कार्गो वाइल ट्रांसपोर्टेड बाय शिप इज सब्जेक्ट टू मेनी रिस्क, मतलब चोरी हो सकती है, गुड्स लॉस हो सकते हैं। दस एन इंश्योरेंस पॉलिसी, और ये तो सभी लेते हैं। फ्रेट, यानी कि शिपिंग कंपनी को कई बार फ्रेट चार्जेस हम बाद में देते हैं आफ्टर रीचिंग, मतलब हमारी पॉलिसी के अंडर है। दिस इज नॉट एवरीवेयर क्लास 11। मतलब अगर शिपिंग कंपनी को हमने पार्शियल दिया है और हम कहते हैं कि जब वहां पहुंच जाएगा तब हम पूरा देंगे, और बाय चांस वहां नहीं पहुंचा, हम तो नहीं देंगे। एट दैट टाइम अगर कंपनी ने फ्रीड इंश्योरेंस ले रखी है तो उसको शिपिंग का, उसको इंश्योरेंस कंपनी से वो पैसा मिल जाएगा। राइट, मींस शिप मतलब द एंटायर बॉडी, वो तो शिपिंग कंपनीज करती करती हैं। कार्गो, इट इज डन बाय द बिजनेसमैन, जिसका सामान उसमें जा रहा है। एंड फ्रेट इज डन बाय द शिपिंग कंपनी अगेन। बाय चांस अगर उनका सामान वहां नहीं पहुंचा, बीच में कुछ और हो गया, तो उनको तो फ्रेट नहीं मिलेगी, तो दे गेट द फ्रेट इंश्योरेंस। द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आर द सेम। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। सबसे पहला क्या है, एक्चुअल लॉस ही आपको मिलेगा। अभी जैसे मैंने आपको बताया दैट इफ द इंश्योरेंस हैज बीन टेकन फॉर 1 लाख, अगर 90 का हुआ तो 90 मिलेगा, 1 लाख 10 का मिला तो जो मैक्सिमम है वही मिलेगा। अंडर नो circumstances the insured is allowed to make profit out of the marine insurance contract, but cargo policies provide commercial indemnity रादर देन स्ट्रिक्ट इंडेमनिटी। मतलब वो आपका होता है जितने पे उनका एग्री हुआ है। मतलब अगर उन्होंने कार्गो 10,000 का किया हुआ तो उनको 10,000 पूरे मिल जाएंगे, चाहे उनका लॉस भी 9,000 का हुआ हो तो। द इंश्योरर्स प्रॉमिस टू इंडेमनिफाई द इंश्योर्ड इन द मैनर एंड टू एक्सटेंड अग्री। एंड इन केस ऑफ हल, यानी कि शिप, पूरे शिप का, the amount insured is fixed at a level about the current market value, fix होता है। Similar to life and fire, it is also utmost good faith। ये इससे पेपर में आपके कई बार क्वेश्चंस आए हैं। एक प्रोक्सिमा कॉज से आया है और एक इससे आया है, दोनों से आए हैं। Both the insured and insurer must disclose everything which is in their knowledge and affect the insurance contract. It is duty, the insured is duty bound to accurately disclose all the facts which include the nature of shipment, risk of damage। अगर उसे नहीं बताया कि भाई इस, मतलब उसने यहाँ से सामान भेजा था, right, he got the insurance, but he did not tell कि 24 घंटे से ज्यादा अगर ये सामान मेरा शिप में रहेगा तो वो खराब हो जाएगा, और बाद में वो खराब हो गया, तो he cannot claim the insurance। He needs to tell। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ लॉस। जब हम पॉलिसी ले रहे हैं तब जरूरी नहीं है, लेकिन जब लॉस होगा तभी तो हमें जरूरत है। द प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा, मैक्सिमम क्वेश्चंस इन्हीं दोनों से आपके आए हैं। द इंश्योरेंस कंपनी विल बी लायबल ओनली इफ दैट पर्टिकुलर और नियरेस्ट कॉज इज देयर। मतलब अगर मतलब कि अलग अलग आपके कॉज हैं तो नियरेस्ट को लिया जाएगा। रेफर टू पेज नंबर 105। देयर वाज वन क्वेश्चन, मतलब बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। नॉट हियर। एक क्वेश्चन था which has come in the exam, I'll tell you। According to that question, मतलब उन्होंने जो है they had taken the insurance, मतलब that is there in the, we will be doing that question। तो चूहे जो थे they had entered into the
मतलब वो था कि शिप को अगर डैमेज हो जाए, अब चूहे जो है वो एंटर हो गए और उन्होंने होल बना दिया, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो दिस कम्स अंडर द कॉजा प्रॉक्सिमा, द नियरेस्ट कॉज। नियरेस्ट कॉज क्या है? शिप को डैमेज हुआ। अब शिप को कैसे डैमेज हुआ ये मेंशन करना जरूरी हो जाता है, वेदर इट इज बाय द माइस और व्हेन इट इज कोलाइडिंग विद द रॉक्स, ये देखना। तो बेटा, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, इंश्योरेंस, whether it is life or it is marine or it is fire, तीनों important है। फायर एंड मैरीन जो है, दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन इन केस ऑफ एनी लॉस, लेकिन जो लाइफ इंश्योरेंस है, इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन द कैपिटल मैक्सिमाइजेशन। याद रखना, दिस कम्स इन द एग्जाम। जो आपका लाइफ इंश्योरेंस है, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट वाइल इट इज फॉर द कैपिटल फॉर्मेशन। वेरएज ये आपके साल के लिए लिया जाता है या पर्टिकुलरली उस शिपमेंट के लिए लिया जाता है, इट इज नॉट टेकन एंड इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ व्हाट यू कॉल एज इन्वेस्टमेंट। लाइफ इंश्योरेंस में हम इन्वेस्ट करते हैं, इसमें नहीं करते। इट इज कंप्लीटली प्रोटेक्शन। एंड बिजनेस सर्विसेज के अंदर जो हमारा बैंक था, उसके अंदर आपका ई बैंकिंग एंड बैंकिंग सर्विसेज टू डिफरेंट एरियाज आपका इंपॉर्टेंट। अब हमारा आता है, मतलब बिजनेस सर्विसेज जब हम बोलते हैं, तो हम बोलते हैं बैंक, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, एडवर्टीजमेंट्स, ये सब हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड उसके अंदर से हमारे लिए कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी हेल्पफुल। व्हाई? अगर आपका कम्युनिकेशन होगा, आपको क्या सामान चाहिए, कब चाहिए, कितने दिन में चाहिए, you are having a number of contracts, you are having suppliers, you are having vendors, you are having customers, you need to transform the ideas, you need to transform the information। और इसीलिए कम्युनिकेशन हमारा जो है एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एज पर बिजनेस। स्पेसिफिकली अगर हम कहते हैं कि आज वी आर लिविंग इन अ ग्लोबल वर्ल्ड, टुडे वी आर हैविंग अ नंबर ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। अभी ऐसा नहीं है कि आज हमने इंफॉर्मेशन दिया एंड इट इज गोइंग टू रीच द पर्सन आफ्टर 10 days। आज इंस्टेंट है, 10 seconds है, 10 seconds है। व्हाट्सएप के थ्रू यू आर एबल टू इमीडिएटली सेंड योर मैसेजेस, एंड इन दैट वे आपके लिए इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अंडर योर सिलेबस इन द कम्युनिकेशन आपका जो है पोस्टल सर्विसेज है, मेल, रजिस्टर्ड पोस्ट, पार्सल्स, स्पीड पोस्ट, उनके जो कुरियर है एंड उनकी जो यूटिलिटी है, एंड द टेलीकॉम सर्विसेज जो है वो, दैट इज व्हाट देयर इट इज इन देयर सर्विस। नाउ व्हाट आर द यूटिलिटीज? नाउ हाउ डू वी कम्युनिकेट? हम अलग अलग तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। वी कैन कम्युनिकेट थ्रू द पोस्टल, वी कैन कम्युनिकेट थ्रू द फोन्स, वी कैन कम्युनिकेट थ्रू द ईमेल्स, राइट? तो सबसे पहला हमारा आता है पोस्टल। these are actually not important, but I'm just going to go through with you। you are having the courier services, मतलब आपकी जो पोस्टल है उसके अंदर आपका कुरियर है, पोस्टल सर्विसेज है आपके अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। यू कैन जस्ट गो थ्रू विद द क्रॉस चेक विद द सीबीएसई साइट आल्सो। देन आपके मेल है, यहाँ पर मेल इज नॉट द ईमेल, रजिस्टर्ड पोस्ट, पार्सल एंड स्पीड पोस्ट। दीज आर द वन एज पर योर सिलेबस। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यही आपके सिलेबस। नाउ आज की डेट पर वैसे तो इंडियन पोस्टल सर्विसेज इज सेड टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट डिपार्टमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड।
एंड हमारे जो पोस्ट ऑफिसेस हैं दे आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सर्कल्स. पहले तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. उसके बाद उनके सब डिविजन्स आपने देखा होगा. आपका एक पोस्टल कोड है. All the people all the children who are living in Dilshad Garden, they are having 95. In Shadra it is 32. In some other areas it is 92. किसी किसी आपका दिल्ली का सबका डबल वन से स्टार्ट होता है. ऑल द कोलकाता इट स्टार्ट विद डबल टू. चेन्नई आपका जो है उसका नाम क्या, वो सॉरी कोलकाता कह रही हूँ, बॉम्बे वाला आपका डबल टू, वो आपका डबल थ्री, चेन्नई आपका डबल फोर. सो देयर इज अ सर्कल जिसमें इनको जो है दिया जाता है. नाउ इन द पोस्ट ऑफिस इज ऑल्सो लाइक अ बैंक. जितने सर्विसेज आपके बैंक में है ना, सेविंग्स अकाउंट यू कैन ओपन इट, एफडी यू हैव, आरडी यू हैव, देन यू हैव पीपीएफ, किसान विकास पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स ऑल्सो जो आपके होते हैं. हाँ, आपके करंट अकाउंट वगैरह नहीं होते हैं. यू डोंट हैव द करंट अकाउंट्स. करंट अकाउंट्स आर ओनली विद द बैंक्स. दे आर गिवन द privilege. लेकिन you have PPF. Now you may be pondering what is PPF. मतलब it's a kind of long term investment, public provident fund. A person individually or an organization can open PPF account जिसमें monthly आपका एक account amount जो है that depends on the company कि वो कितना अपने उसको देता है. Normally it is 8 to 10%. It is deposited. And when a person leaves the organization, तो उसका पीपीएफ अकाउंट या तो ट्रांसफर हो जाता है. एंड देयर इज अ लॉक इन पीरियड. मतलब 15 साल से पहले आप पीपीएफ को तोड़ते नहीं हो अगर आप इंडिविजुअली ओपन कर रहे हो. जैसे अगर मैंने अपना बना रखा है, so that I cannot break it before 15 years. But the amount accumulates over a period of years and I get a lump sum amount. Kisan Vikas Patra. This is a very unique feature only for postal services. This is like a national saving certificate के जैसा होता है. इस पैसे को basically it is used by the government for the benefits of the farmers. तो इसके अंदर जो पैसा होता है when you are depositing, जब आप पैसा deposit करते हो, तो what happens is आपको एक certificate मिलता है and it is a lump sum amount 5,000 10,000 ऐसा होता है. It's in the multiple. So it जब आपको वापस मिलता है after 5 years, sometimes it is doubled. Normally हमारा जो insurance and business का जो banking का जो procedure है वो होता है your money gets doubled in 5 years. So there is a good amount. आपने अगर 2 साल का लिया तो आपको 30% 40% मिलता है. यानी कि आपका 5,000 का में 2,000 डाल के आपको 7,000 मिल जाए. सेम इज नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट. दे आर द सिमिलर. देन आपके इनकम मतलब की इनकम स्कीम्स आपके जो है देर आर सम स्पेसिफिक है आपके सीनियर सिटीजन्स के लिए which is open when a person attains 60 years. It's just like FD, लेकिन आपका रेगुलर मिलता है. उसमें क्या होता है, बैंक से ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है. टाइम डिपॉजिट्स, मनी ऑर्डर, यानी कि if you want to send some money to your friends, to your relatives. आजकल तो it is all Insta. आप WhatsApp पे ही ट्रांसफर कर दो, पेटीएम से कर दो, गूगल पे से कर दो, सब कुछ कर सकते हो. Now we are having lots. But earlier क्या होता था कि मतलब मान लो कि मुझे अपने मतलब किसी रिलेटिव को I have to send money. So there was no bank transfer. पहले जमाने में ऐसे बैंक ट्रांसफर नहीं होते थे. और अभी भी हमारे रूरल एरियाज में these facilities are not there. मे बी मेरे पास व्हाट्सएप है उसके पास ना हो, बिकॉज बोथ ऑफ अस नीड टू हैव द फैसिलिटी. मेनी ऑफ माय पेरेंट्स से कि मैम हमारे पास पेटीएम नहीं होता, दे गो फॉर द जीपे. सम ऑफ देम गो फॉर द इंटरनेट ट्रांजैक्शंस.
मनी ऑर्डर उस जमाने में क्या होता था, वी नीडेड टू सेंड, इफ आई हैव टू सेंड स्पेसिफिकली, माय मॉम यूज्ड टू सेंड टू माय नाना, वी हैड टू गो टू द पोस्ट ऑफिस, वहां पर वॉट एवर द अमाउंट वी हैव टू, हम उसको देते थे, देयर वाज सम चार्ज, वो हम डिपॉजिट करते थे, एंड देन इट विल नॉट बी कि मेरा वहां से, मतलब कि दैट विल बी बिटवीन द पोस्ट ऑफिसेस, and then he would be receiving and the acknowledgement would be coming back to us, जो हमें ये acknowledge करता था कि yes, the money has been received. Even now there are some areas in rural India where आपका money order facility जाता है. Then comes mail facility which is also part of your syllabus. अभी मैंने जो ऊपर आपको बताया था कि it's a part of your syllabus कि courier, postal services, mail, registered post, parcel, ये सब आपका जो है, they are all the important one. No doubt we are having the courier services in the private sectors also, but जो आपका postal है उसके जो charges होते हैं, because it comes under government, वो आपका सस्ता हो. So it helps in the business when the business have to send things in bulk, उनको चीजें बल्क में भेजती है, तो they can use the courier services. Now courier service में क्या होता है, the time is shortened, whereas आपका parcel और if you say mail, उनमें क्या होता है, there is a designated time. It depends on कि आप किस एरिया को भेज रहे हो, किस सिटी को भेज रहे हो, वेदर इट इज अ मेट्रो सिटीज, वेदर इट इज दी, मतलब कि अगर मेट्रो है आपके बेसिक जो आपके 6 मेट्रोज में यूज हो रहा है वहां भेज रहे हो, आप 2 टियर सिटी में भेज रहे हो, 3 टियर सिटी में भेज रहे हो, वो स्पीड पोस्ट. इफ यू वांट कि आपका जो मतलब की इंफॉर्मेशन है दैट शुड immediately reach. Now immediate doesn't mean instant. Immediate doesn't means instant. Speed post का मतलब होता है maybe within 2 days, and again it depends on the city. You have to pay extra. Normal postal service में क्या होता है, आपने लेटर डाला, आप गए, you might have seen 4 boxes, you know, in मतलब कि पोस्ट ऑफिस के बाहर एक रेड बॉक्स होता है, ब्लू होता है, ग्रीन होता है, मतलब एक आपका इंटरनली होता है विद इन द सिटी, एक होता है मेट्रो सिटीज के लिए, एक होता है अक्रॉस इंडिया, एक होता है इंटरनेशनल. स्पीड पोस्ट में क्या होता है, इफ यू आर मतलब आप अपने आप बुक करते हो, तो विद इन द डेजिग्नेटेड डे इट विल रीच दैट पर्टिकुलर सिटी. देन आपके रजिस्टर्ड पोस्ट, जितनी भी आपकी बुक कंपनीज होती है, पहले आजकल तो इतना ज्यादा नहीं है, अभी तो वी आर गेटिंग ऑल द कुरियर फैसिलिटीज, मोस्ट ऑफ द पब्लिशर्स आर यूजिंग. पहले क्या होता था, दे वुड बी यूजिंग द रजिस्टर्ड पोस्ट. अब रजिस्टर्ड पोस्ट और नॉर्मल पोस्ट में क्या फर्क है, रजिस्टर्ड पोस्ट का मतलब है ब्लू टिक ऑफ अवर व्हाट्सएप. आई नो आप लोग कहोगे मैम हम तो ब्लू टिक को भी बंद कर देते हैं, हम तो उसके अंदर लिख देते हैं किसी को ना पता लगे, तो हमारे तो नॉर्मल हो जाएगा. बट इन अनदर वे, इन फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, इट इज अ ब्लू टिक. मतलब जब आप रजिस्टर्ड पोस्ट भेजोगे ना, आपके पास एक्नॉलेजमेंट वापस आएगा कि उस इंसान को वो सामान मिल गया है. फॉर एग्जाम्पल व्हेन द कोर्ट इज सेंडिंग द नोटिस, अगर कोर्ट नोटिस भेजता है तो वो रजिस्टर्ड पोस्ट से मिलता है, क्योंकि उसमें सिग्नेचर होते हैं, और वो इंसान डिनाई नहीं कर सकता है कि मैंने इसे रिसीव नहीं किया था, क्योंकि जिसने भी रिसीव किया होगा उसके सिग्नेचर वहां पर होंगे. So registered post is used in that way when you want the acknowledgement should be there. Like in money order, the acknowledgement is there. Similarly, in the registered post also it is there. जब आपको कोई एक्सपेंसिव चीज भेजनी हो, आपको कोई इंपॉर्टेंट चीज भेजनी हो, वहां हम रजिस्टर्ड पोस्ट को यूज करते हैं. अदरवाइज वी यूज द मेल सर्विस. नाउ अंडर द मेल ऑल्सो यू हैव द राजधानी मेल, यानी कि जो जल्दी जाता है, मेट्रो यानी कि विच इज ट्रैवलिंग ओनली अक्रॉस द मेट्रो सिटीज. इवन दो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई इज देयर, बट नाउ हैदराबाद, पुणे, it has been added to these channels. Next, इसके अलावा ग्रीटिंग पोस्ट, मीडिया पोस्ट, मनी ट्रांसफर, पासपोर्ट फैसिलिटीज, ये भी आपका जो है पोस्ट ऑफिस जो है वो देते हैं.
नेक्स्ट आपका टेलीकॉम सर्विसेज. even though as per the syllabus telecom services is not there, I'm just doing it in a haphazard manner. जल्दी जल्दी मैं आपको करवाती हूँ, just because to ensure कि maybe some schools may add. as पोस्टर के साथ हम जब टेलीकम्युनिकेशन बोलते हैं तो it is also very important. and when it comes to what we call as टेलीकॉम, तो उसके अंदर आपका जो है इट हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहला सेल्यूलर मोबाइल सर्विसेज, यानी कि आपके जितने भी वॉइस मैसेजेस हैं, हमारे जो डेटा है, एनी बिजनेस विच इज डन विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क, पीसीओ सर्विसेज, यानी कि आपका जहां आप जाते हो आप फोन कर सकते हो, वेर यू कैन हैव अ डायरेक्ट इंटरेक्शन. फिक्स्ड लाइन, लैंडलाइन जो आपके होते हैं, बट यू डोंट हैव द वॉइस मैसेजेस ओवर देयर. हाँ, आजकल क्या है कि वी आर ऑल्सो हैविंग द डेटा सर्विसेज अटैच टू देम. आजकल द कंपनीज आर गिविंग दीज फैसिलिटीज एंड इट इज यूज्ड through the fiber optic cables across the length and breadth of the country. It is one of the oldest system in our country, in fact. Because पहले तो हमारे पास कोई मोबाइल्स नहीं होते थे. We used to have only the landline services. And landline services मैंने आप लोगों को 10th में बताया था कि it was not for all. जब इनिशियली इंडिया के अंदर ये आए थे तो नॉट एवरीवन वाज गिवन, मतलब कि इट वाज ओनली फॉर द इम्पोर्टेंट मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी. अगर आप किसी 60s या 50s के घर में, किसी के घर में फोन होता था ना, तो आपको सबसे पहले आप ये देखोगे कि वो इंसान क्या था. ईदर द पर्सन माइट बी अ रिच बिजनेसमैन, अ सेलिब्रिटी, और अ डॉक्टर, अ लॉयर, और एनी ब्यूरोक्रेट वाज वर्किंग विद द गवर्नमेंट, नॉट द नॉर्मल पीपल पर. और उसके बाद होता था कि आप जो हो अप्लाई करो, आपको 2 साल 3 साल में आपके, मतलब उस जमाने में तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी होती थी. वाओ, खुशखबरी है, क्या है, हमारे घर में टेलीफोन लग गया है. आफ्टर हाउ मेनी इयर्स, 3 years. देन दे रिड्यूस दिस टाइम, एंड बाय 1995 द टाइम वाज रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली. अब तो ये है कि वी आर हैविंग द मोबाइल सर्विसेज, वी डोंट इवन रिक्वायर द लैंड सर्विसेज. अब तो ये कि आप जाओ, एंड आई नो ऑल ऑफ यू आर हैविंग 4 or 5 सिम्स इन योर नीड्स. ये पहले नहीं था. पहले it was very difficult and the offices had to be equipped with a fixed line. अभी भी आपके बहुत सारे कंपनीज ऐसी हैं जहां फिक्स लाइन मतलब कि एस्टैब्लिश करना जरूरी होता है. देन केबल सर्विसेज, एंड केबल सर्विसेज आपके अलग अलग हैं. देन वीसैट, यानी वेरी स्मॉल, ये आपके पेपर में 1 मार्कर में आया था. टू मतलब कि इसको एक्सपैंड करने के लिए वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल, जिसके अंदर आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशंस होते हैं, वेयर यू आर एबल टू गेट द अनइंटरप्टेड सर्विसेज, लाइक आपके टेलीमेडिसिन. पहले तो ये होता था, न्यूज़पेपर्स, मार्केट रेट्स वगैरह था. अभी तो टेली एजुकेशन होता था. उस वक्त में क्या होता था, द स्पेसिफिकली फॉर द इग्नोव स्टूडेंट्स जो कि इग्नोव में हो, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटीज में, दे यूज टू हैव द क्लासेस एट 7 o'clock. उसके लिए द सर्विसेज वर यूज्ड अ लॉट. देन डीटीएच, आपके जितने भी सेट अप बॉक्स वगैरह हैं जिसमें आप आराम से यूज करते हो, डीटीएच इज द सैटेलाइट बेस्ड मीडिया सर्विसेज. छोटा सा अपना सेट टॉप बॉक्स लगाया, एंड देन you have multiple channels. You can choose a number of multiple channels, or you can use all of them. So that is how communication has also helped us. Now class 11 transportation is not there in your syllabus, so I'm not going to take telecommunication. मैंने इसलिए लिया था क्योंकि आपका communication is there in your syllabus. When we were doing the insurance, तो आपका लाइफ इंश्योरेंस करवाया था मैंने.
फायर इंश्योरेंस मैंने करवा दिया, विच इज देन मरीन करवाया। इनके अलावा अंडर द जनरल इंश्योरेंस आपके और भी इंश्योरेंसेस होते हैं। दे आर ऑल वन मार्कर क्वेश्चन, दे डोंट कम इन द 3 or 5 marker, but they come in the one marker, like health insurance. Today health insurance is one of the most important insurance which we need. क्यों? क्योंकि आपका मेडिकल कॉस्ट एंड द नंबर ऑफ इलनेस जो है, दे आर ऑल अनसर्टेन. So when we are taking the health insurance, that helps a person to get the reimbursement of the expenses. मान लो उसका कोई इलनेस है, कोई इंजुरी हुई है, वो हॉस्पिटलाइज्ड है, उसकी सर्जरी हुई है, एट दैट टाइम द मेडिक्लेम पॉलिसी जो है वो हेल्प करता है. एंड देयर आर नंबर ऑफ कंपनीज which are under this policy mediclaim, and they help. And mediclaim is also taken by the corporate bodies for their, क्योंकि हम इसको बिजनेस सर्विसेज में पढ़ रहे हैं, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि क्यों पढ़ रहे हैं. देन मोटर व्हीकल, ये आपका जनरल इंश्योरेंस के अंदर आता है, एंड इट इज नाउ आल्सो वेरी इट इज आल्सो मैंडेटरी. सबसे ज्यादा आपको जो है, मतलब कि अभी जो है, व्हेन यू आर टेकिंग द व्हीकल, जब आप व्हीकल खरीदते हो उसी वक्त आपको इंश्योरेंस करना पड़ता है. इसमें दो होते हैं आपका, एक आपका फुल होता है, एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है, एंड दैट इज अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ द व्हीकल यू आर. और इसका जो आपका प्रीमियम होता है वो आपकी मर्जी नहीं होती है, वो स्टैंडर्डाइज होता है एज पर द पॉलिसीज अप्लाई टू दोज व्हीकल्स. इट इज ऑल्सो आपको रिन्यू करना पड़ता है, दैट डिपेंड्स आप कितना ले रहे हो. लाइक सम पीपल टेक फॉर 3 years एंड देन आफ्टर 3 years दे हैव टू रिन्यू. देन बर्गलरी, यानी कि घर के अंदर या अपने कंपनी के लिए कोई भी थेफ्ट, एनी बर्गलरी, एनी हाउस ब्रेकिंग, ऐसा कोई भी एक्ट होता है उसमें आपके जो गुड्स एंड प्रॉपर्टीज है, अगेन आपका यहाँ पर जो प्रिंसिपल्स ऑफ इंडेमनिटी है वो आता है. एंड ऑल्सो द कॉजा प्रोक्सिमा. देन फॉर द फार्मर्स वी हैव द कैटल एंड क्रॉप इंश्योरेंस. क्योंकि कई बार ऐसा मौसम हो गया, बेचारे जो फार्मर्स होते हैं उनके पास बुल्स, बफेलोस, काउस वगैरह होते हैं, एंड मे बी ड्यू टू एनी एक्सीडेंट और डिजीज और इवन एनी इलनेस उनकी डेथ होती है, तो एटलीस्ट दे आर कॉम्पनसेटेड. क्रॉप इंश्योरेंस वॉज आपका पेस के अंडर जो है इट वॉज डन जब आपके एग्रीकल्चर में चेंजेस आई थी, उस वक्त में क्रॉप इंश्योरेंस वॉज इंट्रोड्यूस्ड. क्योंकि कई बार जैसे अभी बारिश हुई, इट वॉज हेवी, फ्लड था, कई जगहों पे ड्रॉट होता है, देन देयर माइट बी लॉस टू द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप्स. वहां स्पोर्ट्स इंश्योरेंस, इट इज फॉर द अमेचर, यानी कि जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, फॉर द स्पोर्टिंग इक्विपमेंट, पर्सनल इफेक्ट्स, लीगल लायबिलिटी, पर्सनल एक्सीडेंट, उसके लिए किया जाता है. इट इज नॉट अवेलेबल टू प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन. Written clearly. The cover is available in respect of any one or following sports: angling, badminton, cricket, golf, lawn tennis, squash, or sporting clubs. Then Amartya Sen Shiksha Yojana. This is one of the very important one, which is government's procedure. जैसे आपका जन धन योजना मैंने बताया था, ये वैसा है. इसमें क्या होता है, जो बच्चा है अगर उसके पेरेंट्स या गार्डियंस दे आर, मतलब उसकी वजह से उनको कोई इंजरी, एनी विजिबल इंजरी हो जाता है, देन और वो जो इंसान है उसकी डेथ या डिसेबल हो जाता है, तो उस बच्चे की जो पूरी पढ़ाई का खर्चा होता है, दैट कैन बी टेकन टिल द एक्सपायरी डेट ऑफ पॉलिसी. देन राजेश्वरी महिला कल्याण बीमा योजना. दिस इज बेसिकली फॉर द women. उनके
it was introduced as a part of women empowerment कि किसी भी विमेन को किसी वजह से कोई एक्सीडेंट, कोई डिसेबिलिटी, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम होती है तो उसकी फैमिली मेंबर्स को मिलता है. दिस इज ओनली फॉर द विमेन एंड दिस इज मोर prominent in Rajasthan में बहुत है. Then these are some of the one which has been recently introduced. Atal Pension Yojana, a very good scheme, but you should take it early if you want the pension to be good. कई कंपनीज होती हैं जहां आपको मतलब कि व्हेन देयर इज आपका अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स है वेयर देयर इज नो पेंशन स्कीम. तो अगर इंडिविजुअली आप 18 से 40 के बीच में हो एंड यू हैव टेकन अप द पॉलिसी, यू आर कंट्रीब्यूटिंग, when the person attains 60 years, then the person will be given the pension monthly, yearly, quarterly, whatever you have opted. ये आपका LIC के अंडर भी है, लेकिन अटल पेंशन योजना वॉज स्पेसिफिकली इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्रेजेंट NDA गवर्नमेंट. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, बहुत ही सिंपल सा है ये. दिस वॉज ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड व्हेन द डिजिटल वॉज इंट्रोड्यूस्ड, जिसमें आपको 2 लाख रुपीस का जो है इंश्योरेंस मिलता है, बट इट इज ऑफरिंग द एक्सीडेंटल एंड डिसेबिलिटी कवर. प्रधानमंत्री जन धन योजना, इट वॉज वन विच इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें सबको जो है आपको मतलब कि बिकॉज इन रूरल एरिया सेविंग्स अकाउंट को नहीं माना जाता था, तो विथ 0 बैलेंस रुपए ATM कार्ड दिया गया था. एंड ऑल्सो दोज हु हैव टेकन दिस, उनको 1 लाख रुपए का जो लाइफ इंश्योरेंस कवर है वो भी दिया जाता. This is one of the very prominent and it can be opened in any of the banks under Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana. Then प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसमें आपका इंश्योरेंस कवर्ड है. सुरक्षा में आपका एक्सीडेंटल एंड डिसेबिलिटी कवर्ड है. इसमें आपका डेथ पर उसको जो है उसकी जो फैमिली मेंबर्स है उनको मिलता है. And the premium is 330 rupees per year. Anyone can offer this. But इसका जो maximum coverage है वो 2 लाख है. लेकिन for insurance आप 2 करोड़ का भी ले लो, इसमें आपका जो है वो 2 लाख का आता है. And this is again a very good scheme because I have opted for this. That is why I know this. And these schemes are also available in all the banks, irrespective whether it is a nationalized or a private bank. So you have to opt for that. क्योंकि जब आप बिजनेस को करते हो, आप अपने एम्प्लॉइज को इन सब चीजों से जो हो, यू कैन प्रोटेक्ट देम. इट्स नॉट प्रोटेक्शन फॉर आवरसेल्व्स, इट इज आल्सो द प्रोटेक्शन ऑफ आवर एम्प्लॉइज जो हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं. आप उनको बोल सकते हो, यू कैन टाई अप विद द बैंक्स. आप अपनी कंपनी को बैंक्स के साथ टाई अप कर सकते हो कि हमारी जो कंपनी है वहां पे जो एम्प्लॉइज होंगे उनको दे हैव टू बी प्रोवाइडेड विद दिस. These kinds of tie-ups are there in the business services, and that is why as a part हम इसको as a business भी कर सकते हैं. But yes, हम प्रधानमंत्री जन धन योजना को नहीं कर सकते हैं. We can go in as a business, as a bank. बैंकर हम बन सकते हैं. We can become a banker. We can become an insurance agent. We can open our insurance company. क्योंकि इसमें वो जो हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था कि कंपनी कैसे खोली जाती है, the same is applied. How you are going to. The only thing is the rules and regulations बैंकिंग का RBI करता है, तो इंश्योरेंस का आपका जो है इंश्योरेंस रेगुलेटरी करता है, IRDA करता है. So that is all in this chapter, that is business services. Kindly go through the NCERT before we proceed to the question answers of this chapter.